Assalamu alaikum. This is Uzma Tanveer. I'm by profession, I'm education consultant. And today, from the platform of Nurul Huda, I'm going to talk about student-centered approach in teaching and learning. This approach, I have been following the sessions done by and the presentations done by many of participants and colleagues. However, I'm going to discuss more about the theory and the strategies that you can adopt in your classrooms. And feel free to comment. And if you have any questions, please do write your question in your comment. And inshallah, I'm going to reply as soon as I will see it. So, without any delay, let's begin our presentation. So, the topic is student centered approach to teaching and learning. What is student centered approach? It empowers learners, transform classrooms, and drive lifelong growth. The presentation that I'm going to do will explore the student centered approach to education. So, student centered learning in a nutshell. What is student centered learning? If you talk about definition, learners over here means students. They need knowledge, interest, and goals to drive decisions. Shift in control. How this in student centered learning? The control is shifted towards the student and it does not stay throughout with the teacher. What we will achieve? We will achieve as a teacher, as a facilitator, we are going to achieve greater students' engagement and it will also lead to deeper understanding and transform different skills. Why move to student centered approach? It is important because this is the time of learning 21st century skills. So, student centered approach fosters creativity, critical thinking, and collaboration for future demands. Because why? How will you achieve all this? By implementing strategies, teaching strategies which foster student centered approach. मीन्स आप ऐसी स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करेंगे जो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको आगे भी बताऊंगी जिससे आप 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप कर सकती हैं अपने स्टूडेंट्स में अपने लर्नर्स में थ्रू स्टूडेंट सेंटर्ड मॉड्यूल आप किसको केटर कर सकती हैं डाइवर्स लर्नर्स को डाइवर्स स्टूडेंट्स को चाहे वो मिक्स्ड एबिलिटी के हो चाहे वो किसी डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से हो चाहे उनकी language first language different ho so you can address to all the needs of your students in the class through student centered learning approach equity kya hai fairness कि you will be fair with everybody in the class there will not be any favoritism and low achieving students will also achieve. All right. So then we'll come to the last point why student centered approach because it is research evidence. The strategies, the teaching strategies that you will adopt will boost achievement and cut failures, like I said. Now we'll come to the theories that what are those theories that support student-centered approach? We have Piaget, Vygotsky, and Bruner's theory. Jean Piaget talks about constructivism. What is constructivism? It is the theory where students actively build their own understanding and knowledge of the world. It means that students are given an autonomy
to find pace and methods to learn different concepts and skills in the classroom and outside the classroom. Then we have Vygotsky, Lean Vygotsky, Leaf Vygotsky, also talks about social relationship. He says that children learn or students learn more when they are in a group, in a social environment. आपको पता है ना, हम सब सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे के से सीखते हैं. अगर हमने जितना भी पढ़ लिया हो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. वी कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. सो इसी तरह आपके स्टूडेंट्स, आपके लर्नर्स का भी है कि दे लर्न इन ग्रुप्स, in the classroom, outside the classroom, at home, in a group where each child supports other. अपने ग्रुप में अपने ग्रुप मेंबर्स को वो सपोर्ट करते हैं. Then we have Bruner. Bruner also talks about learning where students are encouraged to explore and solve issues or problems. जैसे आपको पता है, यू आर वेल अवेयर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड क्वेरी बेस्ड लर्निंग. तो ब्रूनर ने ये आइडिया बहुत सालों पहले ही दे दिया था कि उनकी थ्योरी के हिसाब से बच्चे कब सीखते हैं, जब आप इनको इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट्स दें, आप उनको क्वेश्चन दें और जिसको वो रिजॉल्व कर सकें. उससे क्या होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. क्लासरूम मूव्स क्या इसमें डेवलप होती हैं, इंक्वायरी टास्क, थिंक पेयर शेयर, मैनिपुलेटिव्स. तो ये स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, नॉट ऑल, दीज आर सम स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज टू डेवलप दीज स्किल्स इन योर स्टूडेंट्स. अब हम आते हैं जी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो है वो ह्यूमनिस्टिक भी है और इसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है. क्या होता है इससे, बच्चों की साइकोलॉजिकल सेफ वो फील करते हैं, मेंटली दे फील सेफ, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होता है क्योंकि आपने ऑटोनॉमी उनको दी हुई होती है. तो वो आपने उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी है, आपने उनको बता दिया है, आपने स्कैफोल्ड कर दी है चीज. स्कैफोल्ड का मतलब क्या है कि आपने वो रिसोर्सेज और आपने वो टिप्स दे दी हैं बच्चों को, जिससे वो अपनी ग्रुप में बैठ के उस प्रॉब्लम को या उस कॉन्सेप्ट को सीख सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और उसका कोई पॉजिटिव लर्निंग आउटकम निकाल सकें. तो जब उनको ये सब चीजें मिल जाएंगी, जब वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में काम करेंगे, तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी. इंट्रिंसिक मोटिवेशन अच्छी होगी. इंट्रिंसिक क्या होता है, motivation that comes from within. Means if you are not motivated, it is not only for students and children, but it is for us also. If you don't feel intrinsic motivated, अगर हमारे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं होगी कोई चीज लर्न करने की या कोई चीज सीखने की या कोई चीज करने की, so then nobody can make you learn. कोई फैसिलिटेटर, कोई स्कैफोल्डिंग स्ट्रैटेजीज, कोई टीचिंग स्ट्रैटेजीज आपके काम में आएंगी. अब ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे डेवलप करनी है, बाय एप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स एफर्ट्स, चाहे वो बिल्कुल चीनी मीनी ही एफर्ट्स क्यों ना हो बच्चों. यू नीड टू एप्रिशिएट देम इन ईच एंड एवरी स्टेप. चाहे उन्होंने जो है कोई एक वर्ड भी बोल दिया है, कुछ एक लाइन भी खींच दी है, कुछ भी कर दिया है, यू नीड टू एप्रिशिएट देम. एप्रिसिएशन ब्रिंग्स मोटिवेशन. अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको प्यार मोहब्बत से बात नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी सपोर्ट में आप, जब वो आपको बुलाएं फॉर सपोर्ट, इफ यू आर नॉट अवेलेबल, so then don't expect that intrinsic motivation will take place. It will only take place when you are there to appreciate and to support. डिजाइन क्यूज. अब मोटिवेशन कैसे आएगी, मोटिवेशन कैसे आती है, मोटिवेशन एक तरह से और आएगी जब आप बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से यू गिव देम दोस टास्क.
इट्स नॉट नेसेसरी एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, कि आप उनको gigantic task दे दें which is 100 times challenging for the students that you are catering to. आप उनको उनके लेवल के हिसाब से चैलेंज करें. Not that you will plan a task which is of lower level, but it should be challenging. I'm not saying that it should not be challenging. It should be challenging, but in such a way that they are not stressed out. They don't feel demotivated कि ये तो हम नहीं कर सकते. When they are discussing in the group, they are clueless that how to do it. You have not provided any scaffolding. You have challenged them 100 times higher than the skills that they have. So, that is very important. कि आपने वो टास्क ऐसे बनाने हैं और उनको छोटे बनाने हैं. Like not for a week or two. It depends on the task, but it should not take more than a day or a two to complete it. Obviously, project-based learning में या inquiry-based learning में, there are many steps, but you need to divide those steps with time frame that till this day that this work should be completed and this is group responsibility. So hence this is important. अब हम दूसरी भी बात करते हैं थ्योरी की कि एक्सपीरियंशियल, कनेक्टिविस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज क्या है. ये सारी थ्योरीज जो हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं. कोल्ब का साइकिल क्या है? कोल्ब का साइकिल वही है जैसे हम करते हैं ना कि हम वी प्लान, वी इम्प्लीमेंट, वी रिफ्लेक्ट एंड वी रीप्लान. तो कोल्ब का भी यही साइकिल है कि एक्सपीरियंस करें, रिफ्लेक्ट करें, कंसेप्चुअलाइज करें, फिर एक्सपीरियंस करें फॉर कंटिन्यूस लर्निंग. तो ये साइकिल आपका चलना चाहिए. देखिए, एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, वी नीड टू बी रिस्क टेकर. We should understand that our class is a research model for me. You are conducting research in your class by implementing different teaching strategies and coming up with your reflection and implementing some other strategies if that particular strategy did not work. ठीक है, आपने उसको डिसहार्टन नहीं होना है कि अच्छा ये इंक्वायरी बेस्ड तो मेरे से नहीं चली, तो अब मैं क्या करूं, एंड यू जस्ट फोल्ड योर थिंग्स अप, शेल्फ कर दिया एंड देन यू कंटिन्यू नहीं हुई. ठीक है, ऑर्थोडॉक्स. No, don't do that. Everybody, each one of us are researchers in whatever we are doing. As a consultant, I am a researcher. I give strategies to the teachers, to the heads, like whatever I do. So I take risk and then I follow it up कि जी क्या हुआ, whether it was implemented, क्या उसका positive learning outcome आया या नहीं आया. So hence this is very important. कनेक्टिविज्म की थ्योरी क्या है? कनेक्शन बनाना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट थिंग्स. मैं आगे भी बताऊंगी, जब आप कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी कनेक्शन होनी चाहिए. लाइक इन योर लेसन प्लान, यू नीड टू हैव कनेक्शंस. आप कोई भी चीज बीच में छोड़ के नई चीज नहीं शुरू कर सकते, इसलिए कि देन स्टूडेंट्स फील डिसओरिएंटेड, दे फील लॉस्ट कि अभी तो हम ये कर रहे थे, अब हम ये कर रहे हैं. सो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए. आपकी लर्निंग जो है उसका नेटवर्क होना चाहिए, और वो नेटवर्क आप किससे करते हैं? अपने रिसोर्सेज से. अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उससे, कोई बुक्स कर रहे हैं, तो अब आपने अगर कोई प्लांट ग्रोथ पे कोई इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो अब आप बीच में आप उनको ये तो नहीं बोल देंगे ना कि प्लांट्स के जो है कुछ और बोल देंगे कि जी अब आप ये पता करें कि हमारे जो है इलाके में कितने प्लांट्स, या क्योंकि आप प्लांट ग्रोथ की बात करें जिसमें बच्चे एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, आपने उनको डेटा शीट्स दी जिसमें वो अपना डे टू डे या का डेटा उतारेंगे कि प्लांट सीड ने कब ग्रो करना शुरू किया. सो इट शुड बी इन स्टेप. एंड और फिर आपने टेक्नोलॉजी भी यूज की कि नाउ यू क्रिएट एक्सेल शीट एंड ट्रांसफॉर्म योर डेटा ओवर देयर, क्रिएट अ पाई चार्ट, व्हाटएवर. तो आपने हर चीज को कनेक्ट करना है हर चीज से, क्योंकि देखें जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करते हैं तो उसमें हर सब्जेक्ट का कनेक्शन बनता है.
इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी, साइंस का भी, सोशल स्टडीज का भी। तो ये एज अ फैसिलिटेटर ये आपकी जॉब है। देखिए काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लॉन्ग इसका प्रोसेस होता है, बट उसका एंड रिजल्ट आउटकम हमेशा बहुत अच्छा होता है। आप एक दफा काम कर लेंगी और फिर आप देखिएगा आपके बच्चों का रिजल्ट जो है कैसा, जो है एक्सीलेंट रिजल्ट आता है। फिर सारा काम बच्चे करेंगे, बट यू हैव टू प्लान प्रॉपरली। अगर आपकी प्लानिंग में कनेक्शंस नहीं है, आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, तो फिर वो जो है ना, यू यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट पॉजिटिव रिजल्ट। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग क्या होती है, जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कैन रीसेट माइंडसेट्स लीडिंग टू पॉजिटिव आउट। जब वो क्रिटिकली अगर प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपने दो तीन जगह उनसे प्लांट रखवा दिए, अब साई में जो दरख्त है या घर के अंदर या स्कूल क्लास के अंदर जो सीड है वो तो स्प्राउट ही नहीं हुआ, तो देन स्टूडेंट विल थिंक कि why the seed did not sprouted, why, what is the reason, whether all the elements were present, sunlight, water they were giving, so what was not present. So इस तरह की छोटी छोटी, ये छोटे लेवल की एक प्रोजेक्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है। सो यू आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली, क्या आप जिस लेवल को भी पढ़ा रहे हैं उससे आपके सारे आपके जो आप टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो स्टूडेंट सेंटर्ड को सपोर्ट करती हैं यूज करेंगे, तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। अब हम मैं उस पे आती हूँ कि स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी, यहाँ मैंने थोड़ी सी कुछ डाली है, उनका टाइम फ्रेम भी डाला हुआ है और उसका आउटपुट यानी क्या होगा उसका। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, आप वो 2 से 6 वीक्स, वैसे मैंने कहा था कि हर स्ट्रैटेजी है उसका एक आपको डेडलाइन बनानी, टाइम फ्रेम बनाना पड़े कि पीबीएल जो है वो 2 to 6 वीक्स होगी। उसका क्या आउटकम होगा कि आप जो है उसकी प्रेजेंटेशन करा रहे होंगे, उसकी एग्जीबिशन करा रहे होंगे, उसके बारे में बच्चों के प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई हुई होगी और वो बेस्ट आउटकम के साथ आए। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये 1 or 2 वीक्स की होती है, डायग्नोस्टिक है और सोल्यूशन मेमो होता है इसमें। डायग्नोस्टिक क्या होता है, ये डिपेंड करती है आपके सर्वेस पे। आप जैसे प्रॉब्लम बेस्ड है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिनकी को मॉइस्चर नहीं है, इट्स नॉट प्रोवाइडेड टू देम, सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, आप सर्वे करेंगे, ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, जैसे आपने कहा कि प्लांट ग्रोथ का मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट इज प्रोजेक्ट। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है, इंक्वायरी बेस्ड भी समवॉट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। उसमें आप एक इशू देते हैं, इंक्वायर करते हैं कि व्हाई सम, जस्ट गिविंग वन स्मॉल एग्जांपल, व्हाई स्टूडेंट्स कम लेट टू स्कूल, लेट्स फाइंड आउट। ये भी सर्वे बेस्ड होता है और ये एविडेंस बेस्ड क्लेम होंगे। फ्लेक्सिबल है, आप इसको कर सकते हैं लाइक, क्योंकि ये हमारी इंक्वायरी ये कि स्कूल में बच्चे क्यों देर से आते हैं या सम अदर क्वेश्चन आप पता करना चाहते हैं कि पेरेंट्स पीटीएम क्यों नहीं अटेंड करते। सो ये आपका टाइम फ्रेम ज्यादा होगा, इसके लिए आपको कम से कम मे बी 15 days 20 days इस तरह का, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन प्लान दैट। फ्लिप क्लासरूम, अगर आप लोगों को नहीं पता है, फ्लिप क्लासरूम इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इफ इट इज प्लान प्रॉपरली। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट जल्दी समझ लेते हैं, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो क्लास में एक सेगमेंट पढ़ाएं। तो जैसे इन क्लास एप्लीकेशन टास्क होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आज, फिर आपने नेक्स्ट उस दिन टास्क दिया कि जी दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, तो वो बच्चा आके वो रिकॉल करेगा कॉन्सेप्ट। और ये फ्लिप क्लासरूम होता है व्हेन दी autonomy is given to students to teach. Teacher is not teaching, the students is teaching to the class. Cooperative techniques क्या होती हैं, 15-14 minutes की होती हैं, जिसमें आप ग्रुप वर्क करते हैं, जिसमें आपने कोई सर्वे छोटा सा प्लान किया हुआ है जो ग्रुप जाके करता है,
या कोई आपने एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो ग्रुप में बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो वो तो रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी होती है, अकॉर्डिंगली 15 से 20-30 मिनट्स की आप प्लान कर सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम जो है वो आप रेगुलर अपने प्लानर में डाल सकते हैं। अब कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स क्या हैं? इसमें मैंने दो तीन ही लिखे हुए, वैसे तो बहुत सारी हैं। जिक्सॉ है, थिंक पेयर शेयर है, टीम बेस्ड लर्निंग है, और रीडिंग के भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्रिएटिव राइटिंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं दैट यू नीड टू सर्च। आप लोग माशाल्लाह सब आईटी सेवी होंगे और हैं भी, तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर the the net, and then find out these cooperative teaching techniques. Think pair share क्या है? आपने individually the child has to think, then share with the partner, and then the concluding answer that they will share with the teacher. Jigsaw क्या होता है? Cooperative structure where each student teaches peers a piece of the content. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। उसमें आप ये करते हैं कि आप एक आपका कंटेंट है जो कि बड़ी क्लासेस में ज्यादा होता है ये, कि अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो यू गिव देम स्मॉल सब हेडिंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स। आपने ग्रुप बना दिया 1 2 3 4 5, और उसमें 5 सब हेडिंग्स हैं, गिव इट टू देम। अब जो ग्रुप 1 है उसके अगर 5 पार्ट, क्योंकि 5 ही होने चाहिए, आपके पास 5 ग्रुप है, हर पार्टिसिपेंट उठ के एक ग्रुप में बैठ जाएगा, ग्रुप 2 का एक पार्टिसिपेंट उठ के हर ग्रुप में बैठ जाएगा, देन दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट देयर लर्निंग। और उसके बाद टीचर उनसे पूछेंगी व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द टॉपिक। सोशल स्टडीज में ये बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम आ जाते हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच असेसमेंट में कैसे होती है। देखिए, इसमें फॉर्मल अप्रोच नहीं होती है जो कि हम क्लास टेस्ट और एग्जाम लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हमेशा इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं या असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग होती है, आप क्लास में करते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें आप एग्जिट टिकट्स दे सकते हैं, कोई पोल करा सकते हैं, मिनी क्विज करा सकते हैं, और प्रोजेक्ट सिमुलेशंस होती हैं जिसको दिखा के आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं किसी टॉपिक में, रूब्रिक्स बच्चे बना सकते हैं। जैसे ये उसके लिए होती है कि बच्चे अपनी अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। रूब्रिक्स क्या होते हैं? मे बी आपने उनको एक क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए दी, नाउ दे हैव टू क्रिएट रूब्रिक। अगर उन्होंने रूब्रिक नहीं बनाए हैं तो आप उनको रूब्रिक्स बना के दें, और उस पर वो अपने क्रिएटिव राइटिंग के सैंपल को जो उन्होंने किया है, ऐसे किया है, रिपोर्ट लिखी है, कुछ भी लिखा है, उसको असेस करें अकॉर्डिंग टू रूब्रिक्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, जिससे बच्चे सीखेंगे कि वेयर दे वेंट रॉन्ग, कौन सा ऐसा एरिया है वेयर दे हैव टू डेवलप। अगर ग्रामर निकल के आ रहा है तो वो होगा, मे बी दे डोंट हैव आइडियाज टू पेन इट डाउन। और दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग रिपोर्ट्स, मास्टरी सेपरेट फ्रॉम एफर्ट एंड बिहेवियर। अब अपने आप को ग्रेड करना, जैसे रूब्रिक में मैंने कहा, दे कैन give themselves marks, kg, if the rubric is of 50 marks, so how much they have scored, where they scored less, and then hence they plan their action plan to improve. टीचर का नया रोल क्या होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में? दे वर्क एज अ फैसिलिटेटर। मैं ये वर्ड काफी दफा यूज कर चुकी हूँ। दे बिल्ड इंक्लूसिव लर्निंग कल्चर, क्योंकि वही कल्चर डेवलप करेंगी, आप ही हैं वो जो कल्चर डेवलप करेंगी, जिसकी मैंने अभी आपसे इतनी बातें की हैं। और पर्पसफुल फैसिलिटेशन मूव्स प्लान करेंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो ये देखेंगी कहाँ स्कैफोल्डिंग रिक्वायर्ड है, कहाँ मेरी सपोर्ट रिक्वायर्ड। हर जगह आपने नहीं पहुंचना, हर जगह जहां बच्चे कर रहे हैं जबरदस्ती जाके उनको गाइड नहीं करना, उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, डजंट मैटर इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, आई एम देयर टू हेल्प यू। और फर्दर जाके उनको फैसिलिटेट करें, not that you poke your nose in whatever they are doing. Yes, you have to monitor them whether they are on task or not.
This you have to monitor, but monitor quietly and quietly support those who are not on the task and they are following some other guidelines. So there you have to monitor that particular group, but not the rest of the other groups. इम्पैक्ट क्या होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का? मोटिवेशन एंगेजमेंट बढ़ती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे मैंने कहा होती है, देन गैप्स खत्म होते हैं अचीवमेंट के। अगर जो बहुत ज्यादा आपके बच्चे जो हैं फेल हो रहे हैं या दे आर नॉट कंप्लीटिंग द टास्क, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, उसकी परसेंटेज ज्यादा है, सो इट विल रिड्यूस और आपकी क्लास अटेंडेंस भी अच्छी हो जाएगी व्हेन दे फील कॉन्फिडेंट, व्हेन दे फील intrinsically motivated and where they feel stress free ke I am the one who has to learn, I have the authority of whatever I'm learning। और क्या लाइफ लॉन्ग क्या स्किल्स डेवलप होते हैं? टीम वर्क का होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमें यही करना होता है, टीम वर्क। उसके बाद हमारी SEL यानी सोशल इमोशनल लर्निंग अच्छी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जो कि हमें रिक्वायर होता है इन द वर्ल्ड, चाहे हम करियर ओरिएंटेड हो या ना हो, हम होम मेकर हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बन जाते हैं। So these are some references that I have used to make my presentation. We have come to the end of this presentation. Uh, and the last, I can only say that together as a teacher, as a facilitator, we can transform the future of our students' learning. So thank you very much. And in the last, I will only say that hopefully you have understood something. कोई आपने टेक अवे अगर है आपका तो प्लीज डू मेंशन in your comments what have you learned and something that you would like to implement in your class. Thank you very much. Allah Hafiz.